Welcome to the Physical Education Video Lectures channel. Today we will discuss about the chapter number 7 of class plus 2 Physiology and Injuries in Sports. The first topic is physiological factors determining components of physical fitness. First of all, we will understand what is physiology, what is sports physiology, and what is exercise physiology. So, first of all, just try to understand the meaning of physiology. Physiology is the science of how living things work, which in short means physiology is the study of the functioning of the living organisms. All the living organisms who are living in this entire world, how they are functioning, that science is known as physiology. Now, coming to the second definition, that is second term, that is sports physiology. Sports physiology is the study of long and short term effects of training and conditioning on athletes. कि ट्रेनिंग और कंडीशनिंग का लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है एथलीट्स के ऊपर, जो साइंस उसको स्टडी करता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी. उसके बाद हमारे पास देन वी हैव द थर्ड टर्म, दैट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. Exercise physiology is the study of how the body reacts to physical exercise in both the long and short term, and how the body adapts to ongoing exercise and any changes to a routine. सिंपल मतलब है कि हमारी बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज के प्रति लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे रिएक्ट करती है, और उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को या रूटीन को शरीर उसको किस तरह से अडॉप्ट करता है, और जो कोई भी चेंजेस हम रूटीन में लाते हैं उनको हम कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं. क्लियर? So we are coming to the first topic of the chapter, that is physiological factors determining components of physical fitness. So let us first of all understand the meaning of term physical fitness. Physical fitness is the ability to carry out tasks without undue fatigue. Or physical fitness is the ability to meet the present and potential challenges of life with success. The four basic components of physical fitness are endurance, strength, speed, flexibility. All these fitness components are influenced by various physiological developments in the body systems. ये जो चार मेन कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के, ठीक है जी, इनके ऊपर हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर बहुत सारे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से वी आर एबल टू डिटरमाइन how much endurance an individual must have or possess. So first of all, coming to the fitness component, that is endurance. The various physiological factors which determine the endurance of a person are mentioned below. The first one is lactate threshold. Endurance is determined on the basis of lactate threshold. The quicker accumulation of lactic acid means less endurance and vice versa. लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी को एनर्जी रिलीज ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड. वो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल्स में जमा हो जाता है, एकॉमलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको थकान हो जाती है. ठीक, तो जिसके जल्दी लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा मसल्स में, वो उतनी जल्दी थक जाएगा, तो यानी कि उसका एंडोरेंस कम होगा, और जिसकी देर से ये जमा होना शुरू हो जाएगा उसका एंडोरेंस ज़्यादा होगा. Coming to the second point, that is muscle composition factor. ये मसल कंपोजिशन फैक्टर जो है ये लगभग स्ट्रेंथ में भी आएगा, स्पीड में भी आएगा और फ्लेक्सिबिलिटी में भी आएगा. एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मसल फाइबर टाइप्स, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच.
Endurance athletes generally possess high percentage of slow twitch muscle fibers in the muscles. देखो मसल कंपोजिशन जो है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है मतलब का ये है कि जो मसल फाइबर है ये हमें हेरिडिटरी है, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं जन्म के बाद, जन्म के साथ ही हमारे को मिलते हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर, ये दो तरह के मसल ट्विच फाइबर है, मसल फाइबर जो है दो तरह के, एक स्लो एक फास्ट। तो जो एंडोरेंस एथलीट होते हैं यानी कि जिनके शरीर में एंडोरेंस ज़्यादा होता है तो उनके अंदर जो है स्लो ट्विच मसल फाइबर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जेंडर। जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेल। Endurance is determined on the basis of gender of a person. It is a well-known fact that endurance varies between men and women. देखो जेंडर भी बता दे सकता हमें कि एंडोरेंस किसका ज़्यादा होगा। अगर एक लड़का और लड़की खड़ा कर दें या एक औरत और मर्द खड़ा कर दे तो एक नॉर्मल की बात है कि हमारे को पता है कि आदमी का एंडोरेंस औरत से ज़्यादा होगा। ठीक, उसके बाद एज, ये तो सबको पता है। उम्र जो जो बढ़ती जाएगी, जो जो आप बूढ़े होते जाएंगे उतना एंडोरेंस घटता जाएगा। तो एंडोरेंस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एज। एंडोरेंस डिक्रीजेस विद एज। यंग पीपल हैव मोर एंडोरेंस देन द एज्ड। ये तो सबको पता है। जवान लोगों का ज़्यादा एंडोरेंस होता है और जो बूढ़े लोग होंगे उनका एंडोरेंस कम होगा। आपके सामने पिक भी है, उसमें भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है हार्ट का साइज और उसका वॉल्यूम। एंडोरेंस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द हार्ट साइज एंड वॉल्यूम। तो नेचुरली बात है अगर बड़ा हार्ट साइज होगा और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ये तो सिंपल सी बात है, एक छोटा गुब्बारा एक बड़ा गुब्बारा, एक 50 पैसे का गुब्बारा एक 2 रुपये का गुब्बारा, एक 5 रुपये का गुब्बारा एक 50 रुपये का गुब्बारा। तो नेचुरली दोनों गुब्बारों में फ़र्क है। तो जो हार्ट है हमारा वो भी एक शैलो ऑर्गन है, उसके अंदर भी वॉल्यूम है, उसके अंदर ब्लड जमा हो जाता है। तो जितना बड़ा हार्ट का साइज होगा उतना ही ज़्यादा एंडोरेंस होगा। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, रेस्टिंग हार्ट रेट। अब ये रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है? जब आप रेस्ट में बैठे हो, जैसे अभी आप ये सुन रहे हो, आप अपनी चेयर पे कंप्यूटर के सामने या मोबाइल में सुन रहे हो, तो आप बैठे हुए हो। इस टाइम आपका हार्ट कितना ज़ोर से चलता है। So the endurance is determined on the basis of the resting heart rate of a person. Less resting heart rate means more endurance and vice versa. देखो नॉर्मल इंडिविजुअल की हार्ट रेट जो है 72 होती है, हम उसको हेल्दी समझते हैं। अगर किसी इंसान की हार्ट रेट 72 से ज़्यादा है, 82 है, तो उसका हार्ट कमज़ोर है। और जिसका 72 से कम है यानी कि 60 है, 55 है, 58 है, उसका हार्ट मजबूत है। हाउ कम, कैसे? वो ऐसे कि जिसका हार्ट रेट कम होगा, रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी कि उसके बड़ी शरीर को 1 मिनट में जो ब्लड की मात्रा चाहिए या एक बार में जो ब्लड की मात्रा चाहिए, वो 1 मिनट की मात्रा सिर्फ मात्र 58 बार पंप करने से, जस्ट पंपिंग द ब्लड फॉर 58 बीट्स, इट इज़ एबल टू supply the blood to the whole body, while as an individual normal average person is pumping the blood at 72, and while as the person who is having a weak heart is pumping blood at 85 or 86, यानी कि उसने 86 बार पंप मारना है, एक 55 बार पंप मारना, तो हार्ट जिसका मजबूत है वो पंप कम मार रहा है। Number 7th point related to the endurance, how we can find out the endurance is determined on the basis of the strength of cardiac muscles. आपको पता है कि 3 तरह के मसल्स हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में होते हैं। तो जितने वो पावरफुल होंगे उतना ही आपका एंडोरेंस ज़्यादा होगा, जितने वो वीक होंगे उतना ही आपका एंडोरेंस कम होगा। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट जो है मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक और एरोबिक कैपेसिटी और VO2 मैक्स कैपेसिटी। मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ ये इसकी डेफिनेशन है कि VO2 मैक्स क्या होता है। इट इज कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स पर मिनट, कि 1 मिनट में हमारी मसल कितना ऑक्सीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कर सकती है, वो उसको बोलते हैं VO2 मैक्स।
तो मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ देयर एंडोरेंस कैपेसिटी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करके 1 मिनट में खर्च करते हैं, शरीर की मसल्स उसको खर्च करती है, तो उसका मतलब है उस बंदे के पास एंडोरेंस ज़्यादा होगा।